رسول اکرم علیہ السلام کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، 14 طبق روشن ہوتے ہیں۔ آپ جب تقاضا انوار تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے، جب تقاضا انوار ربانی کا مشاہدہ اور تقاضا میں چلے جاتے تھے، آپ انوار ربانی کے متطلبات کو، مقتضیات کو سمجھ رہے تھے، اور آپ کے لیے قانون ہے، اس لیے کہ آپ انوار ربانی کا مشاہدہ نہیں کر رہے ہیں۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ حضرات محترمین، عزیز طلبہ، اہمیت کے حامل، دور دراز قرب جوار سے آئے ہوئے مہمانان کرام، ہم تمام یہاں پر اللہ رب العزت کی وحدانیت، جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت، علوم نبوت، علم و عرفان، اس نسبت پر اکٹھے ہوئے ہیں اور جمع ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء علیہ السلام آتے گئے، اللہ رب العزت کے احکام نازل ہوتے گئے اور جزوی طور پر ان میں ترمیم ہوتی رہی۔ آخر میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، غار حرا ہے، اور بخاری شریف میں آپ نے جملہ پڑھا ہے کہ یتحنث، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف اور صرف عبادت کے لیے اعتکاف کے انداز پر غار حرا میں ہے۔ آسمان سے فرشتہ نازل ہوتا ہے اور قرآن مقدس کے نزول کا آغاز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان پہاڑوں کی بلندیوں سے کیا جا رہا ہے، اور چند آیات قرآنی نازل ہوئی، بألفاظ دیگر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا اور ختم نبوت کا اعلان کر دیا گیا۔ آپ خاتم النبیین بھی ہیں اور خاتم الشرائع بھی ہیں۔ آپ کے لیے جو شریعت نازل ہوئی وہ آخری شریعت ہے، وہ آخری قانون ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں طلبہ دور حدیث شریف کی خصوصی طور پر توجہ چاہوں گا۔ آپ کو میدان عمل میں نکلنا ہے، چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرنی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں تو ہر دور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آج بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، آپ کی شریعت سارے عالم کے لیے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، مکی زندگی اور مدنی زندگی، دو ادوار پر منقسم ہے۔ کبھی کبھی میدان عمل میں جانے کے بعد ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ دور کسی جگہ پر، احوال کسی جگہ کے مکی زندگی کے متقاضی ہوتے ہیں اور ہمارا کردار مکی زندگی کا ہوتا ہے، کہیں اس کا برعکس ہوتا ہے۔ آپ کو غور کرنا ہے میدان عمل میں کہ کن احوال سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دور مکی دور ہے یا مدنی دور ہے، اور اسی طرح آپ کو میدان عمل میں عمل کرنا ہے، کردار اور رول پلے کرنا ہے۔ آپ جو ہے، آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رسالت سے بڑی کوئی رسالت اس دنیا میں نہ آئی ہے نہ آنے والی ہے۔ آسمانوں کی بلندیوں اور زمین پر ظاہری طور پر بھی پہاڑوں کی بلندیوں سے آپ کی نبوت کا اعلان کیا گیا۔ آپ نبوت کے بعد جیسے
मक्के से लौटे हैं तो बेटे खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, और उसके बाद दर्स व तदरीस का सिलसिला वो बेटे अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, उसके बाद दर्स व तदरीस का सिलसिला, दावत व तबलीग का सिलसिला, तफक्कुर तबलीग का सिलसिला वो बेटे फातिमा बिन्त खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, जहाँ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मशहूर वाक़या पेश आया। उसके बाद महसूर हो गए और शेब अबी तालिब ने वहाँ पर जो है दर्स व तदरीस का सिलसिला, दावत व तबलीग का सिलसिला जारी रहा। उसके बाद फिर दारे अरकम इब्ने अबी अरकम, दारे अरकम जो है पूरी सारी आबादगाह बन गया। यहाँ तक जो मुताद्दिद दरसगाहें वजूद में आती रही, क्या मरहले थे और क्या अहवाल व कवाइद थे, जरा इस्तेहज़ार मकसूद है, इस्तेहज़ार मकसूद है। मैं तफसील में जाना नहीं चाहता। हजरत मोहतरम साहब दावत बरकातुहुमुल आलिया तशरीफ फरमा है, मगर मैं आपकी तवज्जो मंजूर कराना चाहता हूँ कि ये मक्की दौर है, इन दरसगाहों के अहवाल पर जरा एक नजर जरूर डालते रहिए, हमेशा जरूर डालते रहिए। आगे बढ़िए, फिर मदीने मुनव्वरा का दौर है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, मस्जिद नबवी है, सुफ़े नबवी है, और एक दूसरे अंदाज पर गोया मदारिस का और दावत और तबलीग का और मैदान अमल का आगाज होता है। रियासत मदीना वजूद में आ चुकी है, और फिर वहां से हर जानिब समरकंद व बुखारा और कूफा व बगदाद तमाम से गुजरते हुए वलिल्लाहिल हम्द ये इल्म नबूवत इस हिंदुस्तान के अंदर पहुंचा, और हिंदुस्तान में मुताद्दिद जगहों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जियाले पैदा फरमाए। कहीं दिल्ली में इल्म हदीस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उलमा खड़े हुए, कहीं लखनऊ में फ़िक़्ह इस्लामी की तर्जमानी के लिए उलमा तैयार हुए, कहीं माक़ूलात ने जन्म लिया, और ये मुंतशिर दरसगाहें इस हिंदुस्तान में वजूद में आए। हुज्जतुल्लाह फिल अर्द अल इमामुल अकबर मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी नफ़अल्लाहु मरक़दहु व बर्रना वजहहु, आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी अजीबो गरीब बसीरत और शरीयत और तरीक़त की जामियत अता फरमाई, और ऐसे फैसले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको इल्हाम और इल्क़ा फरमाए कि हुज्जतुल्लाह फिल अर्द हजरत नानोतवी नफ़अल्लाहु मरक़दहु अपने रुफ़क़ाए कार को लेकर आगे बढ़े हैं, और अहवाल की तमाम तर नज़ाकतों और तमाम तर बुराइयों के बावजूद, तमाम तर अहवाल की इंतहाई दर्द और बेचैनी के बावजूद हजरत नानोतवी नफ़अल्लाहु मरक़दहु ने दारुल उलूम देवबंद की ताबीर डाली। ये एक मदरसा नहीं, मैं कहता हूँ तो हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी नफ़अल्लाहु मरक़दहु, मैंने अपने कानों से उनको कहते हुए सुना। नज़्मुल उलमा की मस्जिद में खिताब फरमा रहे थे, उन्होंने अर्ज किया, सबसे पहली तहरीक, अहम तहरीक दारुल उलूम देवबंद का जिक्र किया, और करते हुए कहने लगे कि अगर आप दारुल उलूम देवबंद को एक मदरसा समझते हैं तो फिर दारुल उलूम देवबंद के साथ आप इंसाफ नहीं करते। दारुल उलूम देवबंद एक तहरीक का नाम है, और वो अमर जहद तहरीक है, जहां तैयारियां वजूद में लाई जाती है। इससे बड़ी कोई नाइंसाफी इस तहरीक के साथ नहीं हो सकती है कि चंद किताबों तक इस तहरीक को महदूद कर दिया जाए। ये नाइंसाफी होगी और शर्मिंदगी होगी हजरत नानोतवी नफ़अल्लाहु मरक़दहु के सामने। अलगरज ये दारुल उलूम देवबंद वजूद में आया, और यहाँ हजरत नानोतवी नफ़अल्लाहु मरक़दहु, हजरत मौलाना मोहम्मद याकूब साहब नानोतवी नफ़अल्लाहु मरक़दहु, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही फ़क़ीहुन नफ्स नफ़अल्लाहु मरक़दहु, और हजरत शेखुल हिंद अलैहि रहमा, और इसके अलावा रुफ़क़ाए कार, उनकी मेहनतें आगे बढ़ती रही, और फिर उलमा एक नहीं एक बड़ी तादाद
मुल्क के हर कोशे में आपको इनकी खिदमत नजर आएंगे। वो पैदा होते रहे, सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। मुझे कहना ये है कि उसके बाद फखरुल इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब और उसके बाद हजरत हकीमुल इस्लाम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब 50 बरस तक तवील अरसा है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दारुल उलूम देवबंद का एहतमाम, उसकी आबियारी, उसकी तर्जमानी, उसकी जामियत, उसकी शोहरत का सेहरा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत हकीमुल इस्लाम नव्वरल्लाहु मरकदहू को अता फरमाया। उनकी खुतबा, उनकी किताबें, उनकी तहरीरें आप जरा गौर से पढ़ें। क्या दारुल उलूम देवबंद की तर्जमानी है और क्या देवबंदी मसलक की तर्जमानी है। अजीब व गरीब दौर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत हकीमुल इस्लाम अलैहि रहमत को अता फरमाया। उसके बाद आप देख रहे हैं, अभी करीब की बात है कि खतीबुल इस्लाम और रईसुल मुतकल्लिमीन हजरत मौलाना मोहम्मद सालिम साहब कासमी नव्वरल्लाहु मरकदहू व बर्रद मरजअहू तकरीबन 25 बरस पर मुईद हम हजरत अलैहि रहमा के साथ रहे हैं, हजरत अलैहि रहमा को करीब से देखा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें चहत सलाहियतें अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इल्मे कलाम में वो तबहुर अता फरमाया कि चुटकियों में मसाइल को हल करते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ा कमाल अता फरमाया। आज वो हमारे दरमियान नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अनवार और बरकत से उनकी कब्र को नबरेज फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिवार रहमत में और बुलंद मकाम अता फरमाए। हजरत अलैहि रहमा वो नजर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, ये चल रहे हैं, ये फिर रहे हैं। वो सूरत आंखों के सामने जब भी कोई ऐसा मौका होता है, इसी तरह हजरत इब्ने अनवर, हजरत फखरुल मुहद्दिसीन, हजरत अल्लामा सैयद अंजर शाह कश्मीरी नव्वरल्लाहु मरकदहू, अभी आप तराने में तज़किरा सुन रहे थे। उनकी आवाज और उनकी आवाज की खनक और उनकी तहकीक, उनकी तदबीर, उनका बुखारी शरीफ पर अमर जहद कलाम और मुझको बयान अंजर जो है वो एक मिसाल है। एक अजीब और गरीब अंदाज हजरत शाह साहब अलैहि रहमा को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाया था। ये दारुल उलूम देवबंद या बनाम दारुल उलूम वक्फ देवबंद, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये एक दारुल उलूम देवबंद का तसलसल तो आप देख रहे हैं। हजरत नानोतवी नव्वरल्लाहु मरकदहू, हजरत फखरुल इस्लाम नव्वरल्लाहु मरकदहू, हजरत हकीमुल इस्लाम नव्वरल्लाहु मरकदहू, हजरत खतीबुल इस्लाम नव्वरल्लाहु मरकदहू और नमूने असलाफ हजरत मौलाना मोहम्मद सुफियान साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया मुहतमिम, वो उस्ताद हदीस दारुल उलूम वक्फ देवबंद आपके सामने जलवा अफरोज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बोला को अहम सलाहियत है। ये बच्चा तराना पढ़ रहा था, शायद गहराई से मेरी तवज्जो इस तरफ आज भी हुई हो। इसने एक लफ्ज बोला कि वहदत उम्मत, वहदत उम्मत। जब हजरत मुहतमिम साहब का तज़किरा आया तो वहदत का लफ्ज बोलता चला गया। मैं इससे पहले भी ये बात अर्ज कर चुका हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत नानोतवी नव्वरल्लाहु मरकदहू से लेकर हजरत खतीबुल इस्लाम नव्वरल्लाहु मरकदहू तक जो अल्लाह ने कमालात अता फरमाए, उन कमालात से आज भी अल्लाह ने आपको महरूम नहीं फरमाया। आज भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसका अक्स हजरत मुहतमिम साहब दामत बरकातुहुम की शक्ल में आपको अता फरमाया है। हजरत मुहतमिम साहब की दुआएं, हजरत मुहतमिम साहब की तवज्जो, हजरत मुहतमिम साहब का आपके ताल्लुक से ऐसा गहरा ताल्लुक और गौर व फिक्र और तदब्बुर कि किस तरह आप जो है मैदान अमल में आए और आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत तरक्कियात से सरफराज फरमाए। इसके लिए जफाकशी और मेहनत और जिद्दोजहद और नासिफासी होगी कि मैं आइंदा के लिए उम्मीद न रखता चलूं, अल्लाह जाने। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत नायब मुहतमिम
दारुल वक्फ देवबंद के उस्ताद हदीस और नायब मोहतरम मौलाना डॉक्टर मोहम्मद शकीर कासमी अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी उम्र दराज फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती के फैसले करे और उनको कुव्वत अमल और ज्यादा अता फरमाए। तलबे अजीज खूब जानते हैं कि हमारे जहद जो तरक्कियात दारुल उलूम वक्फ देवबंद में आपको नजर आ रही है, उन तमाम में अहम हिस्सा मोहतरम मौलाना डॉक्टर मोहम्मद शकीर कासमी दामन बरकातुहू का है। मुझे कुछ बातें आपसे 2-4 मिनट के लिए अर्ज करनी है। इससे पहले मेहमान जो यहाँ पर तशरीफ फरमा हो उनको तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि वलिल्लाहिल हम्द जिस दारुल वक्फ देवबंद में आप इकट्ठे हैं और जमा है, या दारुल उलूम वक्फ देवबंद में शोबे नाजरा अलिफ बाता से तालीम होती है। नाजरा बच्चा जब पढ़ने बैठता है, नूरानी कायदा पढ़ने बैठता है, तो नूरानी कायदा कुरान करीम, हिफ्ज़, नाजरा और शोबे तजवीद यानी कुरान करीम के इब्तिदाई तमाम दर्जात और उनकी तरफ पूरे तौर पर तवज्जो दी जाती है। अभी आपने जब से इनामिया में देखा कि 5 बच्चों ने 6 बच्चों ने एक नशिस्त में पूरा कुरान करीम सुनाया और मुताअद्दिद असातिज़ा उसके लिए मामूर रहे और असातिज़ा ने खुद कुरान करीम एक ही नशिस्त में उनका सुना। तो दर्जे दर्जे तजवीद है, तमाम शोबे यहाँ पर। फिर अरबी दरजात में जो दारुल देवबंद के कदीम शोबे हैं वो तमाम शोबे, और फिर हजारों तलबा आज बुखारी शरीफ पढ़कर आखिरी दर्स से लेकर ये मौलवी बनने जा रहे हैं। इसके बाद फिर दारुल वक्फ देवबंद में मुताअद्दिद शोबे हैं, शोबे तफसीर है, तकमील अदब है, इफ्ता है, तखस्सुस फिल फिक़्ह वल इफ्ता है, और इसी तरह हुज्जतुल इस्लाम एकेडमी है। एकेडमी में भी तलबा तस्नीफ और तालीम के लिए दाखिला लेते हैं और मुताअद्दिद तलबा शोबे एकेडमी से फरागत हासिल करते हैं। हमारे फिर खुसूसियत के साथ यहाँ पर तखस्सुसात के तलबा को मकाले लिखने के लिए दिए जाते हैं और उन तलबा को मकाले आप समझो कि छोटी छोटी किताबें किसी उन्वान पर उनसे लिखवाई जाती है और वो पूरे साल किताबें लिखते रहते हैं। चूंकि मौलवी होकर आ गए हैं, वो पूरे तौर पर जानते हैं कि किस तरह लिखना है या उनको सिखाया जाता है कि किस तरह लिखना है। वो छोटी छोटी पूरी किताबें लिखते रहते हैं और फिर उनके लिए हुज्जतुल इस्लाम एकेडमी की तरफ से मुहादरे मुनादी कराए जाते हैं। मुताअद्दिद यूनिवर्सिटियों से प्रोफेसर हजरात, अहमियत के आमिल, अक्ल दानिश वाले हजरात यहाँ तशरीफ लाते हैं और हमारे तलबा के सामने अहम अनाबीन पर मुहादरे पेश करते हैं। इंतजामी तौर पर हो, तालीमी तौर पर हो, यहाँ से जो है हमारा निदाए दारुल वक्फ रिसाला निकलता है, अंग्रेजी मैगजीन निकलती है और मजल्ले मुहक्कमा हिंदुस्तान में शायद 2-4 रिसाले होंगे। पूरे हिंदुस्तान के पूरे अर्ध में शायद 2-4 मैगजीन ऐसी होंगी। एक मैगजीन उनमें है वहदतुल उम्मा, अरबी में है, वो मजल्ले मुहक्कमा है, वो अल्हम्दुलिल्लाह दारुल वक्फ देवबंद का तर्जमान है और पूरे आलम अरब में दारुल वक्फ देवबंद की तर्जमानी करता है। इसी के साथ साथ इंतजामी तौर पर दाखिलों के वक्त में आने वाले जदीद तलबा को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। अभी वेबसाइट पर उसके लिए फार्म तैयार कर दिया गया। दरखास्तें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम कहीं भी बैठे हुए आप अपनी दरखास्तें पूर्ण कर सकते हैं। आपको बराह रास्त इम्तिहान के लिए आना है और वेबसाइट पर आप जाएंगे, उसकी तफसीलात कुछ आपके सामने आ गई और हमारा जो तालीमात से वो किताब छपता है कवानीन पर मुश्तमिल, उस किताब से उसकी तफसीलात
امکانات موجود ہیں، آپ کہیں بھی بیٹھے ہوئے اپنی درخواست پور کر سکتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ جن جدید طلبہ کو یہ بات معلوم نہیں، ان جدید طلبہ کو آپ جہاں پر جائیں گے ان کو بھی بتا دیں تاکہ ان کو بھیڑ لگانے کی اور یہاں کے لیے قبل از وقت سفر کرنے کی زحمت نہ کرنی پڑے۔ الغرض اللہ رب العزت کا فضل ہے، دارالعلوم دیوبند ہم جہت متوجہ ہے امت مسلمہ کے لیے کس طرح جیانے تیار کیے جا سکتے ہیں۔ انگریزی کا انتہائی اہمیت کا حامل شعبہ دارالعلوم دیوبند میں قائم ہے، اور شعبہ انگریزی سے فارغ ہونے والے دوسرے سال کے طلبہ الحمدللہ زبان پر عبور رکھتے ہیں۔ باہر کے لوگ جب آ کر ان سے گفتگو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تصور نہیں ہو رہا ہے، سوچنا مشکل ہے کہ یہ مولوی نما لوگ ہیں۔ میں نے کہا مولوی نما نہیں، واقعتاً پورے مولوی ہیں، یہ مولویت سے فارغ ہونے کے بعد داخل ہوئے ہیں۔ وہ عربی بولتے ہیں تو ان کو تعجب ہوتا ہے، انگلش بولتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے کہ مولوی بھی اتنی اچھی انگریزی بول سکتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی خدمات ہمہ جہت ہے، اللہ رب العزت ہمہ جہت خدمات کو مزید ترقیات سے سرفراز فرمائے۔ مجھے تھوڑی سی بات اور آپ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ سارے عالم میں رسول اکرم علیہ السلام پر نازل ہونے والا وہی قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں کوئی دوسرا قرآن کریم نہیں پڑھایا جاتا، وہی حدیثیں، وہی سیاہ ستہ، وہی دور حدیث کی 10 کتابیں نہ جانے دنیا کے کتنے خطوں پر پڑھائی جاتی رہی ہے ہمیشہ سے۔ یہ کوئی بعد میں دین وجود میں نہیں آیا، یہ ایک تسلسل ہے۔ پھر دارالعلوم دیوبند کا کیا امتیاز ہے؟ دارالعلوم دیوبند نے دنیا کو یہ بتایا ہے کہ ایک تو معقولات اور منقولات کی جامعیت، ایک طالب علم معقولات پڑھتا تھا، ایک منقولات پڑھتا تھا۔ دارالعلوم دیوبند نے طالب علم کو لیا، پہلے اس کو معقولات پڑھائے پھر اس کو منقولات پڑھائے۔ منقولات پڑھانے کے لیے یعنی حدیث کی کتابیں پڑھانے کے لیے حدیث کا متن الگ پڑھایا جاتا تھا، فقہ اسلامی الگ پڑھایا جاتا تھا۔ دارالعلوم دیوبند نے حدیث کے متن کی تشریحات کو لیتے ہوئے فقہ اسلامی کو اس کے ساتھ ساتھ پڑھانا شروع کیا، اور فقہ اسلامی اور علم حدیث دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں۔ پھر خصوصی امتیاز میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ یہ جو ہمارا دین ہے اس کی 2 پرت ہے، اس کے 2 پہلو ہیں، ایک ظاہری پہلو ہے، ایک باطنی پہلو ہے۔ ایک ظاہری پہلو جس کو آپ تشریع اسلامی کہتے ہیں، ایک باطنی پہلو ہے جس کو آپ تکوین کہتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ابھی آیت پڑھی وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، یہ ظاہری پہلو سے متعلق ہے، وَالْأَفْئِدَةَ یہ باطنی پہلو سے متعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے دیوبند کو یہ کمال عطا فرمایا کہ یہاں پر تشریع اور تصوف یعنی شریعت اور طریقت دونوں کی جامعیت اختیار کی گئی، اور درس حدیث کا یہ امتیاز دیوبند میں قائم ہوا۔ 2-4 منٹ کے لیے میں آپ کو شاید سبق میں بتایا ہوگا کہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ اولین صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند، آپ نے علم حدیث میں پڑھا کہ صلاۃ کسوف سورج چاند کے گہن ہونے کی 2 رکعت نماز لمبی لمبی پڑھی جاتی ہے۔ آپ نے پڑھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں 2 رکوع فرمائے، پھر دوسری رکعت میں 2 رکوع فرمائے، یعنی 2 رکعت میں کتنے رکوع ہوتے ہیں؟ 2۔ آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکوع فرمائے، ثم قام فاطال ثم ركع فاطال ثم قام فاطال ثم سجد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکوع فرمائے۔ شوافع کے نزدیک آج بھی 2 رکوع ہے، احناف یہ کہتے ہیں رکوع تو ایک ہی کیا جائے گا۔ اب آپ نے تشریحات پڑھی ہے، شرح کی کتابیں پڑھتے چلے جائیے، پڑھتے چلے جائیے، توجیہ ایک سے ایک
तरह की लंबी गुफ्तगू मैंने आपके सामने अर्ज की होगी, वो कहते चले गए। हजरत नानोतवी, हजरत मौलाना मोहम्मद याकूब साहब नानोतवी नंबर मरकज़ की तशरीह मैंने पढ़ी। हजरत ने इरशाद फरमाया कि रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो रवायत सहाबा की है कि 2 रुकू एक रकात में फरमाए, इसकी किसी ताबीर की जरूरत नहीं है। और इमाम अबू हनीफा ने जो इरशाद फरमाया कि एक ही रुकू किया जाएगा, यह अपनी जगह पर कानून अटल है। तो क्या फतवा अबू हनीफा के कौल पर दिया जाएगा? अमल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए इरशाद फरमाया कि रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर वही नाज़िल होती है, 14 तबक रोशन होते हैं। आप जब तकादा अनवारे रब्बानी का होता था तो आप खड़े हो जाते थे। जब तकादा अनवारे रब्बानी का मुशाहदा और तकादा होता था तो आप रुकू में चले जाते थे। आप अनवारे रब्बानी के मुततल्लबात को, मुक्तदायात को समझ रहे थे और आपके लिए कानून है, इसलिए कि आप अनवारे रब्बानी का मुशाहदा नहीं कर रहे हैं। वो साब्तों की, ये राब्तों की बात है, वो राब्तों की बात थी। बहरहाल एक तकदीर है, एक तसव्वुफ है, एक उसकी हकीकी गहराई है, उसका ताल्लुक है, और एक ज़ाहिरी ज़ाब्ता और तशरीह इस्लामी है। अबू हनीफा ने ज़ाब्ता बयान फरमाया है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने तकदीर और उसके रास्ते को बयान फरमाया है। बस शुर्रा अगर होते तो कह उठते कि तजल्ली ना थी अंदूर, न तुम समझे न हम समझे, चला क्यों करिए कोहे दूर, न तुम समझे न हम समझे। कहना यह है कि ये कमाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने देवबंद को अता फरमाया। और आपको बताता चलूं कि देवबंद की ये इल्म हदीस की अहमियत की हामिल तर्जमानी, इसमें सबसे बड़ा कमाल हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी नफ़रअल्लाहु मरकज़हू को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाया था। आज भी अल्लाह ने उनके पोते हमारे मोहतरम और मुकर्रम हजरत मौलाना सैयद अहमद जिगर शाह मसूदी दामद बरकातुहुल आलिया सदरुल मुदर्रिसीन नाज़िम मजलिस तालीमी शेखुल हदीस दारुल देवबंद, आपको उनसे तनम्मुल का मौका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाया। इन निस्बतों को कलील और बेअहम न समझ लेना। आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दारुल उलूम वक्त देवबंद में ये कमाल की निस्बतें अता फरमाई है। लेकिन याद रखो, अब जो आपको जाना है, मैंने जो आपको बताया कि मक्की जिंदगी क्या है, मदनी जिंदगी क्या है, अखबार पर उसका इंतबाह करना ये आपका काम होगा। आग है, औलाद इब्राहिम है, नमरूद है, फिर क्या क्या फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है। अजीब हालात है, आप सब समझ रहे हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, हजरत मोहतरम साहब दारुल बरकातुहुल आलिया तशरीफ फरमा है। मैं तवील गुफ्तगू इसलिए कर गया, जितनी तवील हुई कि मेहमान इधर उधर से और आने वाले थे, दुआओं में शिरकत के लिए लोगों के फोन आ रहे थे कि इतने सवेरे जो है दुआ ना हो जाए, हजरत मोहतरम साहब की दुआ से हम महरूम रह जाए। और जहां जानिब से फोन ये आ रहे थे कि बारिश का मौसम है, जरा सा ताकीद कीजिए, जरा सा ताकीद कीजिए। हम दारुल वक्त देवबंद में अपने मुकर्रम मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। दारुल वक्त देवबंद आपके आने पर आपको मुबारकबाद कहता है। अल्लाह करे आपके बच्चे हमेशा कामयाब हो और मिल्लत इस्लामिया को अल्लाह भरपूर कामयाबी अता फरमाए। 2-3 बातें मैं आपके सामने अर्ज कर दूं कि सबसे पहले यहाँ पर 2 किताबों का सबक है, एक दर्स मुसलसलात है और एक बुखारी शरीफ की तकमील है, आखिरी दर्स है। हजरत मौलाना सैयद अहमद जिगर शाह मसूदी दामद बरकातुहू तौरे हदीस शरीफ के तलबा को मालूम है कि कुछ दिनों से अलील चल रहे हैं। आज भी बहुत कोशिश की कि वो तशरीफ लाए, मगर डॉक्टरों ने कतई तौर पर इजाजत नहीं दी, वो तशरीफ नहीं ला सके। हजरत मोहतरम साहब ये
मुसलसलात का दर्स देंगे। हजरत मोहतरम साहब ही बुखारी शरीफ के ताल्लुक से खिताब फरमाएंगे, उन्हीं की दुआओं पर आज तकमील होगी। यानी आप यूं समझिए कि हजरत शाह साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ नहीं लाए, लेकिन इजाजत हदीस देने के लिए इंशाअल्लाह जिस दिन भी मौका मैसर आएगा इंशाअल्लाह वो जरूर तशरीफ लाएंगे और इजाजत हदीस आपको देंगे। 2-3 निकाह जो है दुआ से पहले होंगे, लेकिन निकाह वाले लोग जो है करीब में आकर बैठा है। इसके साथ साथ बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे आए होंगे जिनके बच्चे जो है आज फारिग हो रहे हैं। वो दारुल उलूम देवबंद का ज़ाहिरी तौर पर भी वैसे तो आपसे दुआएं मतलूब है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर भी आप ताउन करना चाहते होंगे तो इधर बाब अनवर है जो मेन गेट है, बाब अनवर इधर से होटलों की तरफ से आप आते हैं, वहां पर मुफ्ती फराज साहब ने रसीदें रखवा रखी है, लोग वहां पर बैठे हुए होंगे। तो दारुल वक्फ देवबंद का जो हजरात ताउन करना चाहे और क्यों ना करना चाहे, हर एक को गैरत तो अहमियत होनी चाहिए। आप दारुल वक्फ देवबंद में आए तो जितनी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसाफिर हो वहां पर रसीदें कटवाते हुए जरूर जाए। वहां गेट से आप निकलेंगे, भीड़ होगी मगर ज्यादा चक्कर में नहीं आना, उसी भीड़ में जो है कोशिश करना। बराबर में गल्ला भी रखा हुआ है, जो हजरात जो है रसीद की जरूरत नहीं वो उस गल्ले में जो है अपना ताउन डालते हुए चले। कहना ये है कि आप ताउन वक्फ देवबंद में आए हैं, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल फरमाएंगे। असल हमें दुआएं करनी है, आखिरी दर्स है और इस दर्स को गौर से सुनना है, दुआ तक इत्मीनान के साथ बैठना है। दुआ के बाद मैंने फिर तवज्जो दिला दूं, ये सामने की सब वाले तमाम तलबा जंजीरा बनाकर खड़े हो जाए। यहाँ पहली सब में हजरत के सामने से जरा सा पीछे को हटकर खड़े हो। इस दरवाजे से मुसाफिर के लिए आएंगे, इस दरवाजे से मुसाफिर के लिए आएंगे और बुजुर्ग पानी लेते हुए जो है इस दरवाजे से चले जाएंगे। तो इस तरह जो है बाहर से लाइन लगाएंगे। दारुल हदीस में अंदर से कोई मुसाफिर के लिए आने की जहमत न करे, उधर बाहर से लाइन लगाएंगे बरामदे से और यूं इस गेट से आएंगे और इस गेट से जो है मुसाफा करते हुए निकल जाएंगे। दूसरी बात ये है कि मुसाफिर के वक्त में देखो एक आदमी मुसाफा कितने लोगों से करना है, तो मुसाफिर में हाथ को हाथ से मस करना है, हाथ को हाथ से मिलाना है, पकड़ के हाथ जो है देर तक रुकना नहीं है। अगर इस सुन्नत को आप जिंदा करते रहेंगे तो फिर उधर से फर्ज जो है वो तर्क होता हुआ चला जाएगा। लोगों का इज़्तिहाम है, इसलिए जो है आप तक़दीमुल अहम अलल मुहिम का ज़ाब्ता पेश नजर रखें। मुसाफिर में हाथ से हाथ को मस करने पर इक्तिफा करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका नासिर व मददगार हो।